So, good evening, friends. I am CA Vinod Jamra, and it is my pleasure to welcome you all to this live session hosted by me, but organized with the CA community by Tally. Today, we are diving into a transformative feature within Tally Prime that is set to change how we handle business transactions, Bharat Connect. In this session, we will learn how to digitally send invoice from a supplier Tally directly to a customer Tally, completely free of cost and explore the broader potential of this ecosystem. पहले हम जैसे आपने सुना है कि व्हाट्सएप पे इंटीग्रेशन कर लिया, मेल्स कर दिया, इनवॉइस को पीडीएफ बना लिया, तो ये जस्ट साइड हो गया है. अब भारत कनेक्ट आ गया जैसे लाइक यूपीआई. तो हमारे स्पीकर को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम, सीए मनीष बंसाली जी. टू गाइड अस थ्रू दिस टेक्निकल इवोल्यूशन वी हैव विद ए ट्रू एक्सपर्ट इन द फील्ड. CA Manish ji is a chartered accountant and an AI and tax consultant who specializes in bridging the gap between traditional practices and modern technology. He is an alumnus of IIM Ahmedabad and the founder of Growth Partner. Manish ji is widely recognized as a Tally and Zoho influencer and has received several prestigious accolades including Best Young Entrepreneurs Award 2024. Emerging Partner of the Year 2023 and Tech Transformer Award 2022. As a Tally expert and evangelist, he brings a unique mix of finance expertise and technology insight to help professionals future-proof their practice. Manish ji, we are thrilled to have you here to show us how Bharat Connect can streamline our workflow. Over to you. Yes. Thank you so much, Vinod ji. I hope I'm clear and audible. Yeah, sir. Okay. And yes. welcome. Thank you so much for having me over, sir. It's a pleasure to address 14 of you in the room and more people to join a later point of time. So today is an important topic for all of us, whether you're a chartered accountant or a tax practitioner or an accountant. हम सबके लिए बहुत important topic है जो आते हुए दिनों में या महीनों में the only important topic हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि इसका use case वैसा है. Before I proceed with the topic, I would want to know whom am I talking to. तो अगर आप चैट बॉक्स में लिख सको कि what is your profession, are you a chartered accountant, CA, tax practitioner, accountant, business owner, if you can just mention in the chat box, I'll get to know what kind of examples I have to post. Pramod sir says he's a CA. Great sir, thank you for coming in. If you can just respond in the chat box, I'll get to know ताकि मैं relevant examples ले सकूं throughout the presentation. Anyone else who would want to respond? Okay. Anshu Gupta sir says CAC. Okay. I guess we have CAs in the room. That's great. Yes, sir. CA बैकग्राउंड लगभग सर सीएज हैं या सीएज के स्टूडेंट्स हैं या मतलब सीए बैकग्राउंड है या फिर एडवोकेट्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, मतलब फाइनेंस के अंदर ही प्रैक्टिस करते हैं. अप्रोक्सीमेटली ऑडियंस है या Yes. कुछ अकाउंटेंट मिल सकते हैं हमें. Got it. Perfect. Then we are good to go because this community I've addressed before, so it's easy for me. Now before I start with Bharat Connect, I just want to know कि आपको भारत कनेक्ट के बारे में कुछ सुना है, माना है, जाना है. अगर कैसा है आपका कुछ नॉलेज बेस ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ मच डू यू नो अबाउट भारत कनेक्ट, सो दैट आई नो वेयर टू स्टार्ट, या फिर मेरे को एकदम बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है, या फिर इफ यू आर 5 and above then I can start from intermediate level. What is your expertise in Bharat Connect? Do you know, have you heard of Bharat Connect? कहीं कहीं सुना है, कोई वीडियो देखा है टैली का या जोहो का, कोई भी वीडियो? पार्थ सर ने नहीं सुना है. ओके. Anyone else not heard? Akruti ma'am says she's not heard. It's a platform which indicates vendors for invoice and payment. Perfect sir. Invoice share with other software. Perfect Saurabh sir. Okay. So I think a few of you have a clue what is Bharat Connect and a few of you are completely unaware what is Bharat Connect. So I'll start from the start. So थोड़ा background से मैं start करूंगा ताकि सबको एक common understanding में अपन आ जाए कि भारत कनेक्ट क्या चीज है. Then we'll see the use case कि इसको actually use कैसे किया जाता है. And before I begin, I would want to tell that like आप 5 साल से 7 साल से 10 साल से प्रैक्टिस में होगे और ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो पूरे अपने अकाउंटिंग फ्रेटर्निटी को यूजफुल है. आप ऐसे मान के चलिए जैसे
गवर्नमेंट ने या द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा कर लिया है। बिजनेसेस के लिए तो करते ही रहते हैं, बट एज अकाउंटिंग फ्रेटर्निटी हमारे लिए कुछ ऐसा यूनिक किया है जो हमको हमारे प्रैक्टिस में बहुत यूजफुल होगा। राइट, सो नाउ आई क्विकली शेयर माय प्रेजेंटेशन। विनोद जी, प्लीज जस्ट कंफर्म मी इफ माय प्रेजेंटेशन इज विजिबल। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। Is it shared, sir? Yeah, just a second, I'm sharing, it's loading. Yeah. It's visible? Uh, yeah, sir. Visible. Okay, great. Perfect. So, welcome everyone. Today's topic for the day is Bharat Connect in Tally Prime. Right? Bharat Connect is a technology. वो Tally Prime में कैसे यूज किया जाता है वो हम देखेंगे। और अगर आपको Tally Prime में यूज करना आ गया तो Zoho में, EaseBuzz में, दूसरे कोई सॉफ्टवेयर में यूज करना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज द कोर ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स सेम। नीचे मैंने टैगलाइन दिया है, चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ अकाउंटिंग। जिस दृष्टि से हम अकाउंटिंग को देखते थे एज अ असाइनमेंट और एज अ वर्क फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ टैक्स प्रैक्टिशनर, वो आपका दृष्टिकोण चेंज होने वाला है अगले 15-20 मिनट में, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज unimaginable what our government has done, and this is much much before AI and all of that। अभी तक तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने AI एक्सप्लोर किया नहीं है। सो उसके पहले ही इसे नेटिव नेटिव टेक्नोलॉजी बनाया है जो विच has completely changed the landscape of accounting। So, what is Bharat Connect if I want to tell? Like we have UPI for payments, the same way UPI movement for accounting is Bharat Connect। तो भारत कनेक्ट एक गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट का एक एंटिटी है विच इज कॉल्ड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। उनका एक प्रोडक्ट है यूपीआई। राइट, ऑल ऑफ अस हियर नाउ यूज यूपीआई। अब जैसे कि जिसको भी अगर पेमेंट करना है तो हम उनको पूछते हैं कि आपका यूपीआई आईडी भेज दीजिए ताकि हम पेमेंट कर सके। और जब भी आप पेमेंट करना चाहते हो तो यू डोंट रियली केयर कि सामने वाले का कौन सा बैंक है। राइट, बिकॉज अगर यूपीआई आईडी आ गया और यूपीआई आईडी में आपने ट्रांसफर कर दिया तो उसका जो भी बैंक हो उसमें वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। सेम वे, भारत कनेक्ट इज अ टेक्नोलॉजी बाय एनपीसीआई विच इज मेड फॉर इनवॉइस शेयरिंग एंड पेमेंट रिकंसिलिएशन। तो इसमें ऐसा होता है, जैसे आप टैली फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हो और आपने एक बिल बनाया। बिल बनाते ही अगर आप एक कमोडिटी बिजनेस में हो तो शायद बिल सेव करते ही आपको आपका टैली पूछता है, डू यू वांट टू प्रिंट दिस इनवॉइस? राइट, एंड आप यस क्लिक करते हो और इनवॉइस प्रिंट हो जाता है। और अगर आप लेट्स से कुछ सर्विसेज बिजनेस में हो और आप बिल व्हाट्सएप करते हो तो वो आपको टैली आपका पूछेगा, और आपने व्हाट्सएप इंटीग्रेट किया टैली से तो आपको हाँ टैली मुझे दिखाई पूछेगा। दे रहा है। आई गेस देयर इज सम डिस्टर्बेंस। म्यूट हो गया। वो बाई चांस आती है तो मैं नोट कर रहा हूँ। या श्योर। तो या सो अगर आपके पास ऐसा कुछ है जहां पे यू आर क्रिएटिंग इनवॉइस एंड लेट्स से यू आर शेयरिंग इट टू योर कस्टमर्स डायरेक्टली ऑन देयर सॉफ्टवेयर, यानी आपको प्रिंट आउट नहीं लेना है, आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, आपको ईमेल पे नहीं भेजना है, आपको कोरियर भी नहीं करना है। आपके सॉफ्टवेयर से सीधा सामने वाले के सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाए और एक नोटिफिकेशन आए उनके कि ऐसे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेंडिंग द इनवॉइस, आवर ऑफिस नेम इज ग्रोथ पार्टनर्स एंड लेट्स से विनोद एंड को इज सर्स ऑफिस नेम। तो मैंने ऑफिस में मैंने एक इनवॉइस भेजा और सर के सॉफ्टवेयर में एक अपडेट आया, नोटिफिकेशन आया कि मनीष जी फ्रॉम ग्रोथ पार्टनर्स हैज सेंट यू दिस इनवॉइस, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस इनवॉइस? एंड एट अ क्लिक ऑफ बटन वो इनवॉइस एक्सेप्ट कर दे। तो कितना काम आसान हो जाता है, और यही एग्जैक्टली सॉल्व कर रहा है भारत कनेक्ट। So, just as UPI revolutionized payments, Bharat Connect is revolutionizing accounting. It is NPCI's official bill sharing and payment system. So, this is about UPI and how Bharat Connect is also somewhat similar to UPI. Next, let us talk about a few frictions in our workflow. हमारा जो day to day workflow है, mind you, a few of us might be thinking like in my previous seminars, people were thinking कि अरे हमारे तो हमारा टैली में इतना सारा बिल वगैरह नहीं रहता है, हमारे क्लाइंट्स के इनवॉइसेस में रहता है, बिल टैली में रहता है। बट दिस टेक्नोलॉजी ओनली इफ यू नो यू कैन पास इट ऑन टू योर क्लाइंट्स। राइट, अगर आपके क्लाइंट्स को आप अपडेट करो कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आया है तो ही वो अपने वेंडर से, अपने कस्टमर से वो शेयर कर पाते हैं। I'll just name a few business workflows which are completely broken. First one is scattered invoices। जैसे कि एक बिजनेस बहुत सारे सप्लायर से डील करता है, और कोई सप्लायर है जो कोरियर करेगा इनवॉइस, कोई सप्लायर है जो व्हाट्सएप करेगा, कोई सप्लायर है जो मेल भेजेगा, कोई सप्लायर है जो वो शायद आइटम के साथ ही इनवॉइस भेजेगा तो वो पार्सल के अंदर ही इनवॉइस रहेगा।
ऐसे एक इनवॉइस अलग 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 जगह पे वो स्कैटर्ड है। तो एक कस्टमर को, एक बिजनेस ओनर को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब ट्रैकिंग करने के लिए, राइट? दिस इज पॉइंट नंबर वन, जहां पे बहुत सारा फ्रिक्शन है। Point number two is item name mismatches. जैसे कि let's say you have named, you are in a mobile store and you have named this as iPhone 15, okay? But सामने वाला भेजेगा iPhone 15 black 128 GB, right? और आपने इतना डिटेल्ड एसक्यू मेंटेन नहीं किया है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर अकाउंटेंट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, इसको मैपिंग कहाँ पे करूँ, इसको कौन से अंडर, कौन से आइटम के अंडर डालें। एंड ये रोज का है, बिकॉज every day you will have to map it, every day you have to tell your accountant, and इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ते जाता है। नेक्स्ट वन इज डेट, रेट एंड क्वांटिटी एरर्स। समझिए अगर रेट 1350 के बदले 13,500 डाल दिया तो इट गोज फॉर अ टॉस। या फिर क्वांटिटी में 5 के बदले 50 डाल देते हैं, 50 के बदले 5 डाल देते हैं। ऑल दैट बिकम्स अ chaos एंड यू फाइनली इट टर्न्स आउट टू अ पेमेंट chaos, जहां पे आपका इनवॉइस रिकॉर्डिंग कम अमाउंट पे हुआ है, पेमेंट कम होगा, फिर पार्टी का रिमाइंडर आएगा, ऑल ऑफ दैट। एंड आई एम श्योर 99% ऑफ आवर कस्टमर्स गो थ्रू दिस। Just can you reply in the chat box if all your clients have such a problem in their workspace? You can just reply in the chat box yes or no, y or n. ये सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आपके क्लाइंट्स को फेस हो रहे हैं क्या? राहुल सर सेज यस, विनायक सर सेज यस, पार्थ सर सेज यस। परफेक्ट। तो मोटा मोटी जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन प्रैक्टिस इन इंडिया, उनको ये सारे प्रॉब्लम्स है। एंड इस प्रॉब्लम का मजा ये है कि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्लाइंट विल नेवर पे अस, राइट? क्लाइंट ओनली पेज अस कि ठीक है GSTR 1 फाइल हो गया, 2B रिको हो गया, 3B रिको हो गया, 3B फाइल हो गया, राइट? सिर्फ उसी के लिए क्लाइंट पेज अस। बट ये सारा जो भी गंदा हुआ है उनके बुक्स में, वो सब क्लीन करने में हम उनकी मदद करते हैं, बट फॉर दैट क्लाइंट इज नेवर पेइंग अस। So this is actually a technology which can help us save time and clean up the books of accounts for our clients, so that when the data comes to us for GST returns, it's all very clean and neat, right? क्योंकि as a chartered accountant, okay, this is another good question that I want to ask all of you. Uh, because if you get this answer right, probably next 30 minutes will be very interesting for you. Let's say you charge 5,000 rupees for a GST return for your client, okay? And that client is using Tally and they have done, let's say, 5 errors, uncertain transactions में 5 है। तो आप वो uncertain transaction solve करते हो and आप return file करते हो, you raise an invoice 5,000 and he pays you the 5,000 amount. अभी नेक्स्ट मंथ लेट्स से वही क्लाइंट 15 मिस्टेक्स करता है, आपका 15 अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस है। नाउ टेल मी इन द चैट बॉक्स, आप क्लाइंट को कितना चार्ज करोगे? 5,000 ही चार्ज करोगे या 5,000 से ज्यादा? You can just write in the chat box how much will you charge the client. Pramod sir says 5K. Anybody else? Last time 5 uncertain transaction था, इस पर 15 है, 3 times. Vinayak sir is a Gujarati, he's written 5. Okay. Anybody else? 4,000 सर, कम कैसे चार्ज करोगे सर, आपका काम बढ़ रहा है। राहुल सर आप ज्यादा चार्ज करने का सोच सकते हो, कम तो आप डेफिनेटली नहीं करोगे। ओके, एटलीस्ट 6K। अंशु सर से 6K, बिकॉज द प्राइमरी थिंग आई वांट टू कन्वे इज, अगर काम बढ़ रहा है तो पैसा भी बढ़ना चाहिए, राइट? बट द सैड पार्ट ऑफ CAs इन प्रैक्टिस इज वी आर इन अ फ्लैट फी स्ट्रक्चर। क्लाइंट का एरर 5 हो, 15 हो, 25 हो या 50 हो, हम चार्ज उतना ही करते हैं, बिकॉज वी फील कि हमारा काम है, क्लाइंट के एरर्स को क्लीन करना हमारा काम है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट्स नॉट, राइट? क्लाइंट का GST रिटर्न्स फाइल करना, रिकंसिलिएशंस करना, वो सब हमारा काम है, बट ये मैनुअल एरर्स को फिक्स करना ये हमारा काम नहीं है, राइट? डू यू ऑल अग्री? टीच टू क्लाइंट, यस। यस सर, दैट इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ प्रोफेशन राइट नाउ। परफेक्ट पार्थ सर। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लाइक इफ यू एक्चुअली सिट एंड सी योर 1 month ऑफ वर्किंग, आपको पता चलेगा 50 से 60% टाइम आपका इस काम में जा रहा है जिसके लिए क्लाइंट वैल्यू नहीं करता है और क्लाइंट आपको पे नहीं कर रहा है। क्लाइंट सिर्फ पे कर रहा है फाइनल डिलीवरेबल का, विच इज GSTR 1 and 3B, दैट्स ऑल। और वो जो मिसमैच है जो भी है उसके लिए क्लाइंट इज नॉट पेइंग। सो नाउ there are only two options. One, client should reduce the errors. Two, you should raise your fees. Raising the fees is not so easy because we all know we are in a competitive market. So the only option left now is help the client reduce the errors. Now, a few chartered accountants, I have done Bharat Connect sessions before, and a few chartered accountants are of the view कि अरे वो हमारा काम नहीं, हम उनको क्यों बताएं कि कुछ नया टेक्नोलॉजी आया है।
आई एम टेलिंग दिस इज एक्चुअली अ सेवियर फॉर ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर क्लाइंट्स इस टेक्नोलॉजी को बराबर से अडॉप्ट करेंगे तो आपके जीएसटीआर में रिकंसिलिएशन का काम बहुत कम हो जाएगा। एरर्स का, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन का ये काम नहीं के बराबर हो जाएगा और आपका टाइम बहुत बच जाएगा। अभी समझिए उसी जीएसटी रिटर्न जिसके लिए आप 5,000 चार्ज करते हो, अगर वो आधे टाइम में हो रहा है, दैट्स योर कैश प्रॉफिट, दैट्स योर प्योर प्रॉफिट, राइट? सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नॉट सी दिस एज जस्ट अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, but to see this as something which can really revolutionize how you work with your clients. Because anytime you elevate your client with a tech experience, your client grows. And all of us chartered accountants, our growth is directly proportional to our clients growth. अगर अपने clients grow हो रहे हैं तो अपने billables भी grow हो रहे हैं, and as a CA firm or a tax practitioner firm, even we are growing, right? It should be based time based and not on clients turnover. Definitely not on clients turnover, sir. But time based भी आजकल clients are not so comfortable paying on time based. It is always deliverable phase based and flat fee structure for CS. So now I'll proceed to the topic, because if you also feel this pain, then the topic will be very interesting for you. I'll just proceed in the presentation. Yeah. So what does this भारत कनेक्ट टेक्नोलॉजी डू? मैं थोड़ा थियरी पहले कवर कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। बाद में मैं टैली में जाके लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो भारत कनेक्ट एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर अपना इनवॉइस भेजेगा डीलर को, राइट? एंड डीलर उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकता है, उस परचेज को एक्सेप्ट कर सकता है। तो डीलर को वापस इनवॉइस री एंट्री करना नहीं है, वो सिंपली एक्सेप्ट कर देगा और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, भले वो टैली हो, जोहो हो या कोई भी अकाउंट, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें वो एंट्री आ जाएगा और वहां से वो पेमेंट करेगा। और पेमेंट करके वो एक कंफर्मेशन भेजेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कि मैंने इस इनवॉइस का पेमेंट कर दिया है और ये यूटीआर रेफरेंस नंबर है। फिलहाल अपन क्या करते हैं, लेट्स से स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, वो भी आप सॉफ्टवेयर से शेयर कर पाओगे। और उस मैसेज को देख के उसी पे एक क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूटर रिसीट क्रिएट कर सकता है एक वहीं से, और वो रिसीट अगेंस्ट रेफरेंस हो जाएगा। एंड वहां से वो अपने डीलर को भेज सकता है कि हाँ भाई तेरा पेमेंट आ गया, एंड दिस इज द पेमेंट एक्नॉलेजमेंट। And then finally the entire process is closed. This is called the complete framework of Bharat Connect, and this is how it will work. Now there are five main features of Bharat Connect. ये मैं theory इसलिए पहले ले रहा हूँ ताकि when I show you live you will be able to catch it up properly. First one is invoice exchange, like I told you, from one software to another. From समझिए आप टैली यूज कर रहे हो, आपके कस्टमर भी टैली यूज कर रहे हो, कर रहा है, तो आपने बिल बनाया और बिल आपने ना प्रिंट दिया ना व्हाट्सएप पे शेयर किया, आपने डायरेक्टली उनके सॉफ्टवेयर में भेज दिया बिल। दिस इज नंबर वन। नंबर टू, स्मार्ट ऑटोमेशन, जहां पे आप ऑटोमेटिकली मैप कर सकते हो कि अगर मनीष से ये बिल आया है तो ये बिल का ये आइटम का नाम इस आइटम को मैपिंग होना चाहिए। जैसे कि लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर आईफोन 15 मनीष के इनवॉइस में लिखा हुआ है तो मेरे बुक्स के अंदर इट शुड गो टू आईफोन 15 128 GB, समथिंग लाइक दिस, राइट? Number three is interoperability, which is a game changer actually. A lot of the integrations do not happen because there are multiple softwares, right? कोई Tally यूज कर रहा है, कोई Zoho यूज कर रहा है, कोई व्यापार यूज कर रहा है, all of that. But this technology doesn't really care. Same like UPI. अगर आप यूपीआई पेमेंट किसी को कर रहे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से बैंक में उनका अकाउंट है। द सेम वे इसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, भले ही वो टैली करे, भले ही वो जोहो करे, आप उनके सॉफ्टवेयर में ये इनवॉइस भेज सकते हो। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड पेमेंट्स। अभी इसमें एडवांस्ड वर्जन में ये है कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हो, आपको आपके बैंक में जाना नहीं है, क्योंकि आप वापस टैली में बैलेंस चेक करोगे, बैंक में जाकर पेमेंट करोगे, वो आपको करना नहीं है। आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही 5 बिल को सेलेक्ट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, और सामने वाले को पता चलेगा कि इस 5 बिल का पेमेंट हुआ है। एंड ऑब्वियसली बिल वाइज रिकंसिलिएशन एक बहुत बड़ा हेडेक है फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स, एआर एंड एपी, जिसकी वजह से बैलेंसेस कभी मैच ही होते नहीं है। तो जब ऑटोमेटिकली डेटा फ्लो हो रहा है तो रिकंसिलिएशन करने का काम ही नहीं रहेगा, क्योंकि एवरीथिंग विल बी मैप, इनवॉइस नंबर एग्जैक्ट रहेगा, टोटल एग्जैक्ट रहेगा, क्वांटिटी, रेट्स, everything will be perfectly synchronized, right? So these are the five features of Bharat Connect. Now let us go to activation of how Bharat Connect should be activated. So यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास गोल्ड लाइसेंस है एक, और यहाँ पे यू कैन सी आई एम यूजिंग टैली प्राइम 7.0, राइट? ये 7.0 से एडवांस्ड वर्जन में ये वर्क होगा। आई जस्ट ओपन डेमो कंपनी विच आई क्रिएटेड। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, टैली दिख रहा है ना?
या सर। ओके, सो यू कैन सी ग्रोथ पार्टनर्स भारत कनेक्ट डेमो। सिर्फ मैंने एक डेमो कंपनी बनाया है, इसमें कोई एंट्रीज वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक एंट्री है, वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, जस्ट सेकेंड। जो भी है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ ताकि आपको एक स्टार्टिंग से मैं दिखा सकूँ कैसे वर्क करना है। या जस्ट डन। आई थिंक ओके, एक पेमेंट ट्रांजेक्शन और रहेगी सर शायद। सॉरी सर। एक पेमेंट ट्रांजेक्शन और रहेगी शायद। हाँ, ये इधर है। ओके, perfect. So it's a very simple three step activation procedure. क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे जीएसटी नंबर पे एक्टिवेशन कर दिया है, इसलिए मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाऊंगा। बट मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है जहां पे वो दिख जाएगा। बट उसके पहले आपको ये रिक्वेस्ट कहाँ पे डालना है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्रोम में। आई जस्ट ओपन गूगल क्रोम। यू कैन जस्ट राइट भारत कनेक्ट टाली प्राइम। इसका एक यूआरएल आ जाएगा, फर्स्ट यूआरएल जो, यस, भारत कनेक्ट फॉर बिजनेसेस ऑन टैली प्राइम। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एनेबल। सर ये स्क्रीन दिख रहा है सर? या सर विनोद? विजिबल। ओके, ओके। एनेबल भारत कनेक्ट करके यहाँ पे ऑरेंज में एक ऑप्शन है। अगर कोई लैपटॉप से कनेक्टेड है, लाइव यूज करना चाहता है, प्लीज डू इट सो दैट इफ यू हैव एनी एरर्स और क्वेरीज यू कैन जस्ट पोस्ट इट देयर। तो आपको भारत एनेबल भारत कनेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे वो पूछेगा नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड सीरियल नंबर। दिस इज वन टाइम प्रोसीजर क्योंकि ये बैकएंड से एनेबल होता है। और यहाँ पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको एंटर करना है, तो बैकएंड से अपने आप भारत कनेक्ट का एड ऑन जो है आपके टैली के लिए एनेबल हो जाएगा। एंड ये जो भी मैं डेमो आगे दिखा रहा हूँ उस सब के लिए फर्स्ट स्टेप है। अगर ये हुआ तो ही आगे का प्रोसीजर आपको कंप्लीट होगा, राइट? अगर कोई ऑडियंस में ऐसा है जो लाइव हमको अपना डेटा देना चाहता है, सीरियल नंबर वगैरह, तो हम लाइव आपको दिखा सकते हैं कि कैसे वर्क करता है। इज देयर एनीवन इन द ऑडियंस वुड वांट टू एनेबल भारत कनेक्ट टू देम, टू देयर सीरियल नंबर? एंटनी जी बोल रहे हैं शायद। सॉरी सर। एंटनी जी बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं शायद। Yeah, Anthony sir, can you share the details? सीरियल नंबर। आप ये चारों डिटेल्स भेज दीजिए सो दैट वी विल डू इट लाइव, ताकि सबको हैंड्स ऑन पता चल जाए कैसे वर्क कर रहा है। ओके, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एंड फिल इट अप। विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट विनोद सर, ताकि अगर लाइव हो गया तो। यस सर। हाँ, ओके, नोट नो नाउ प्रॉब्लम। सर। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू टेक इट अप? 34 of us are there in the room. If not, I'll just proceed with the video, not a problem. जस्ट मिनट सर। Yeah. Okay, Anshu Gupta sir has put it in. Thank you, sir. Anshu Gupta. I'll just write the name. Uh, how to get serial number? Sir, it's on the top left corner. Never mind. हम अंशु सर का ले लेंगे। अंशु सर, आपका ईमेल आईडी? हाँ दिया दिया है सर उन्होंने। हाँ, उन्होंने दिया है ना। नाइन टू AC वन डॉट अंशु टू जीरो डॉट एट जीरो एट एट जी मेल डॉट कॉम। नाइन AC डॉट अंशु डॉट, सॉरी, डॉट जी, अंशु डॉट जी gmail.com। एंड सीरियल नंबर इज दिस, आई जस्ट कॉपी इट। सर, इस सीरियल नंबर से जो लिंक्ड है, वो आपके पास है ना, फोन नंबर और ईमेल आईडी? यहाँ पे ईमेल आईडी गया, आपके एडमिन ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है सर। वो आप हमको बता दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए और हमको बता दीजिए। आई जस्ट पुट इट हियर। अनम्यूट करना सर। हाँ सर, आ गया, नो प्रॉब्लम, आई उन्होंने मैसेज कर दिया। या, आई जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। Perfect, it's done. So all of you in this, I'll just zoom it so that all of you can see it properly. Yeah, serial number linked successfully. Please update your license to install Bharat Connect for Business plugin and proceed with registration. पाथ भी इन्होंने दिया है, मैनेज लाइसेंस में जाके FI अपडेट करना है। फॉर गाइडेंस यू कैन क्लिक ऑन Tally Help. So beautiful, we just showed live on how this can be done. This is just one time procedure, आपको ये हर बार नहीं करना है, लाइफ में एक बार ही करना है, बाद में हो गया। I'll just show people how to update as well, because those who are not aware, I'll just show it to them. Uh, so this
ये ऊपर जो टैब आया, आई एम नॉट एबल टू, या ओके, वी हैव टू गो टू, सॉरी, वी हैव टू गो टू हेल्प, एंड इन हेल्प वी हैव टू गो टू सेटिंग्स, लाइसेंस, मैनेज लाइसेंस, और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन रहेगा। एवरीवन प्लीज कंफर्म इफ यू कुड फॉलो मी टिल हियर, या फिर मेरे को वापस दिखाना है। आई यू गुड टिल हियर, जहां मैंने अपडेट कैसे किया, आई जस्ट शो यू अगेन। F1 हेल्प, उसके बाद अपन को जाना है सेटिंग्स में, फिर लाइसेंस में, फिर मैनेज लाइसेंस में, और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपका डॉट नेट आईडी और पासवर्ड अगर आप डालोगे तो बैकएंड से ऑटोमेटिकली आपका लाइसेंस अपडेट हो जाएगा एंड इट विल बी एनेबल्ड फॉर भारत कनेक्ट। अंशुल सर, सॉरी अंशु सर, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप लाइव हमारे साथ ही करते जाइए, ताकि आपको एक लाइव एक्सपीरियंस मिले कैसे कर किया जाता है। एंड एनीबडी हु इज यूजिंग लैपटॉप, यू कैन feel free to do it live so that you get a hands on how this is done. Are we all good till here? Can we proceed? Okay, I guess everyone is checking live. Okay, never mind. We will proceed from here now. So once we update it like this and get this add-on enabled from backend, आप अगर एक्सचेंज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, ऑल भारत कनेक्ट ऑप्शंस। अंटिल यू डू दैट आपको वो नहीं दिखेगा, ये ऑप्शन आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। बट एक बार आपने वो अपडेट कर दिया तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, ऑल भारत कनेक्ट ऑप्शंस। एंड यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग इन एंड लॉग आउट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार लॉगिन किया हुआ है, ये स्क्रीन मेरे को दिख रहा है। अगर लॉगिन फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे प्ले करूंगा। विनोद सर, आप मेरे को सिर्फ कंफर्म करना है इसका ऑडियो यानी वीडियो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। आई Sure, sir. जस्ट, या, Well, press on. Ensure you have logged into Bharat Connect using your tally.net ID. सर ऑडियो सुन रहा है सर? Yeah, sir. Clear. ओके, Welcome to Telehealth Bharat Connect using your tally.net ID. Press Alt say All Bharat Connect options and select क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है इसलिए मेरे को ये नहीं दिख रहा है, बट आप फर्स्ट टाइम करोगे तभी आपको ये दिखेगा। एंड यहाँ पे एक बार ये भी वन टाइम प्रोसीजर है, मैनेज रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। Manage Registrations. In the Manage Registration screen, you can see PAN and GSTIN's UINs. अगर आपके टैली में एक से ज्यादा कंपनी ओपन है तो वो सारे कंपनी यहाँ पे दिखेंगे, और जरूरी नहीं है कि आपको सब साथ में रजिस्टर करना है। अगर लेट्स से आप उसमें एक या दो ही रजिस्टर करना चाहते हो तो आप सिर्फ उसको सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन प्रोसीड। तो आई जस्ट प्ले दिस नाउ। आई, Select the PAN or the required GSTIN to यहाँ पे आप देख सकते हो अनरजिस्टर्ड दिख रहा है। आई जस्ट म्यूट द ऑडियो सो दैट, या, सो करेंटली इट इज शोइंग एज अनरजिस्टर्ड। नाउ F6 रजिस्टर पे मैं क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे वापस जीएसटी नंबर वगैरह ऑटो फिल आ रहा है, अपने आप मेरे को पूछ रहा है। और एक बार मैंने फिल कर दिया तो मेरा अभी ओटीपी गया। जीएसटी रजिस्टर्ड जो आपका फोन नंबर है, जो आप जीएसटीआर 3B या 1 फाइल करते हो तभी ईवीसी अगर आप क्लिक करते हो और वो ओटीपी कहाँ कोई नंबर पे जाता है, उस नंबर पे ये ओटीपी जाएगा एक बार, और वो आपको ओटीपी एंटर करना है। वंस यू एंटर दैट ओटीपी, या, नाउ दिस ऑप्शन इज लाइक यूजर नेम। अगर आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह यूज करते हो, हर किसी का एक यूजर नेम होता है। सो ये वो यूजर नेम है विच इज यूनिक टू वन पर्सन, लाइक यूपीआई आईडी। देयर कैन नॉट बी टू यूपीआई आईडीज विच इज सेम फॉर टू पीपल, राइट? सेम वे आपका ये यूजर नेम जैसे होगा भारत, दिस इज कॉल्ड बी टू बी आईडी। और यहाँ पे क्लाइंट टैली की तरफ से आपको 6-7 सजेशंस मिलेगा, यू कैन चूज वन ऑफ देम, और यू कैन चूज टू क्रिएट योर न्यू यूपीआई बी टू बी आईडी। और ये एक बार क्रिएट हो गया तो यू कैन जस्ट सेव इट, एंड बाद में आपको फाइनल स्क्रीन में ऐसे दिखेगा। आई जस्ट शो यू, या, सक्सेसफुली क्रिएटेड, यस, नाउ इट्स शोइंग यू रजिस्टर्ड। और बी टू बी आईडी यहाँ पे दिखेगा गणेश 24, राइट? वो इस एग्जाम्पल में लिया हुआ है। आई जस्ट क्लोज दिस नाउ, आई कम बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, सॉरी, आई कम बैक टू टैली। और ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो अभी मैं वापस एक बार लॉग इन करूंगा ताकि ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं।
या ये ओटीपी पूछ रहा है, अभी ओटीपी मेरे फोन पे आएगा, आई जस्ट एंटर द ओटीपी। यस, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ऐसा अपन को दिन में एक बार करना रहेगा, हर 24 आवर्स में ये चला जाएगा, बिकॉज दिस हैज टू बी वेरी सिक्योर। एक्सचेंज में जाएंगे, ऑल बैंकिंग ऑल भारत करंट ऑप्शंस में जाएंगे, तो नाउ यू कैन सी लॉग इन लॉग आउट, ये सब जो ब्लर्ड था वो अभी विजिबल हो गया है। सेंड इनवॉइसेस, पेमेंट डिटेल्स, मैनेज रजिस्ट्रेशन, ये सब अपन देख सकते हैं, राइट? So this is step one of registrations. Is everyone clear till here? So that if you give me a thumbs up, we can just go forward. I'll understand that all of you are clear till here. Give me a thumbs up in the chat box that registration process is clear, because this is the step one. ये अगर आपको पता चला तो ही आगे का आपको समझ में आएगा। Okay, Rahul sir says yes. Saurabh sir, you have a query, sir? You can tell us, sir, क्या query है registration में? Maybe he wanted to send a thumbs up. Okay, never mind. Query है तो भी आप ग्रुप में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए, so that we can take it forward. No problem. Yeah, he doesn't have a query. Cool. ठीक है, तो ये ऐसा अपना रजिस्ट्रेशन हो गया। नाउ आई शो यू द मेन पार्ट विच इज अबाउट सेंडिंग द इनवॉइस टू योर कस्टमर। उसके लिए पहले अपन एक सैंपल इनवॉइस बनाते हैं। आई जस्ट शो यू। एक सेकंड। या तो अभी हमारे पास एक सैंपल पार्टी क्रिएटेड है, उनका नाम है परम कंसल्टेंसी। एक मैंने पार्टी सैंपल बनाया है, और मैंने एक डमी बैंक बनाया है, और कुछ डमी आइटम्स बनाए हैं। तो मैंने एक सेल्स इनवॉइस में बनाता हूँ, यहाँ पे सेल्स इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ, एंड लेट्स से आई सेलेक्ट परम कंसल्टेंसी, और उसके बाद या वेट, आई जस्ट टेक सर्च नंबर ओनली सो दैट इट विल बी इजी। सर आपका B2B आईडी है सर, विनोद सर? एक लाइव में दिखाना चाहता था। यूर ऑन म्यूट सर। अंशु सर, अगर आपका B2B आईडी बन गया है तो यू कैन जस्ट पोस्ट इट हियर। ओके, यू हैव इट, यू सेड यस। ओके, तो सर आपका ही एक लेजर हम नया बनाते हैं, ताकि लाइव ये भी लाइव दिखा दे, उतना बेटर एक्सपीरियंस रहता है। सो आई जस्ट गो ऑन क्रिएट, एंड देन आई गो ऑन लेजर। एक नया लेजर हम बनाते हैं, और यहाँ पे आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू एज अ चार्ट अकाउंटेंट और एन अकाउंटेंट नो अबाउट दिस फीचर, फेच डिटेल्स। जस्ट गिव मी अ यस और नो इन द चैट बॉक्स, क्योंकि हमारे प्रीवियस वर्कशॉप में हमको पता चला कि लोगों को ये फीचर ही नहीं पता है। It's a feature available from Tally Prime 4.0, which is a very beneficial feature to all chartered accountants. Just give me a yes or no in the chat box so that I get to know. Pramod sir says yes. Okay. Anybody else? A fetch details using GSTIN. किसको पता है ये feature? Okay. That's great. Okay, Akansha ma'am doesn't know about this feature. Ma'am, you should know. This is a very important feature for Sanjeev sir also doesn't know. Okay, then let me show the feature to all of you. This feature is a very great feature by Tally, and all of your clients should know this. You send them a video or two on this, and this will benefit them as well as you. I'll just show you what it does. So whenever you're creating ledger, the normal traditional practice is to write the name of ledger, select it as sundry debtors, write all the details of address and all of that. But now you can do it automatically just by putting in GST number. विनोद सर, आपका GST नंबर हमको बताएंगे अनम्यूट करके? आई जस्ट राइट इट लाइव हियर। कोई भी GST नंबर सर? नहीं, आपका जो B2B रजिस्टर्ड है, B2B आईडी जिस पे है। B2B आईडी में आई थिंक होगी नहीं सर, वो सर बता रहे हैं ना। अच्छा, अंशु सर बता रहे हैं, ठीक है। अंशु सर बता रहे थे ना। अच्छा, राहुल सर आपका B2B आईडी है क्या? तो ही मैं एग्जाम्पल में दिखा सकता हूँ। अच्छा नहीं, ये तो काम नहीं आएगा। अंशु सर आपका B2B आईडी इफ यू हैव क्रिएटेड, आई जस्ट वांट टू टेक 5 मिनट, भले ही ज्यादा जाए, थोड़ा लाइव अपन दिखाते तो मजा आएगा इसमें। ओके, नो प्रॉब्लम, आई जस्ट क्रिएट अ डमी। हमारे ऑफिस के नाम का ये मैं बना देता हूँ, ताकि आप सबको पता चले कि वो दिखता कैसा है। लेट्स से आई टेक माय GST नंबर ओनली। अपन को सिर्फ GST नंबर डालना है, एंड आई क्लिक ऑन एंटर, एंड यू कैन सी ऑटोमेटिकली GST नंबर से पूरा डिटेल्स आ गया।
राइट? पूरा ऑफिस का नाम आ गया, पूरा एड्रेस आ गया, पैन नंबर, स्टेट, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन टाइप, सब कुछ आ गया. इज दिस वंडरफुल? इवन बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ दोज हु सेड नो, Akansha ma'am and Sanjeev sir, you didn't know about this feature, but is this wonderful that only by entering GST number you can fetch all the details? Okay, great. So this will be very useful, ma'am. अगर आप ये आपके क्लाइंट को बताते हो तो all their errors, the silly errors like zero के बदले o डाल दिया, one के बदले I डाल दिया, all those errors will just go away, right? तो ये अपने आप fetch हो जाता है. If you want, you can do any changes, and then I'll just say Control A, and this is done. So now all of you can just focus here at this part. Are you able to see my cursor, Vinod sir? Yes, sir. मेरा कर्सर दिख रहा है क्या, कहाँ पे मूव हो रहा है? हाँ बिल्कुल, या शोइंग ओके ओके. एवरीवन जस्ट ऑब्जर्व हियर व्हाट हैपेंस. तो मैं ग्रोथ पार्टनर्स यहाँ पे आ गया है. अभी इधर मैं जाके आई जस्ट सेलेक्ट इट एज सन्ड्री डेटर्स, एंड जैसे मैं एंटर करता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे B2B आईडी करके अपने आप आ गया, राइट? क्योंकि मेरे टैली पे ये एड ऑन एनेबल्ड है, इसलिए ये ऑप्शन आया है, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा. एंड आपको फोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह ये डालना है. लेट्स से मैं एक बार डाल ही देता हूँ सो दैट you see the final invoice also. Okay, let's see, Manish. ओके, मैंने डाल दिया. और यहाँ पे आप देख सकोगे B2B आईडी पूछ रहा है. अभी हमको पता नहीं कि ग्रोथ पार्टनर्स का B2B आईडी क्या है, तो आई कम हियर, एंड यहाँ पे क्योंकि मेरे को पता नहीं है, आई जस्ट क्लिक ऑन सर्च B2B आईडी. और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, इट अगेन आस्क मी फॉर tally.net आईडी. तो मैं मेरा वापस .net आईडी यहाँ पे दूंगा. पासवर्ड, ओके, अगेन OTP. या नाउ इट्स हियर. सो हमने B2B आईडी हमारे ऑफिस का नाम में ले लिया है, विच इज ग्रोथ पार्टनर्स. यू कैन जस्ट सी इट हियर, राइट? सो आई जस्ट सेलेक्ट दैट B2B आईडी एंड आई सेव इट नाउ, राइट? इट इज सेव. तो ऐसे करके आप जो भी आपके डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, उनका B2B आईडी आप सर्च कर सकते हो. और एक ऑप्शन है वो जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, कि आप जान सकते हो उनका B2B आईडी है भी कि नहीं, राइट? दिस इज स्टेप नंबर 1. नाउ आई विल क्रिएट अ सैंपल इनवॉइस. मैं ग्रोथ पार्टनर से ग्रोथ पार्टनर्स में नहीं भेज सकता हूँ इनवॉइस टेक्निकली. So I'll just select another party which is Param Consultancy, right? आप यहाँ पे देखोगे, कंट्रोल एंटर करता हूँ, परम कंसल्टेंसी का भी B2B आईडी है, राइट? सो दिस इज रजिस्टर्ड ऑन भारत कनेक्ट. सो यहाँ पे ओके, I'll just okay, this will just one time it will ask us and we have to confirm it. और यहाँ पे I'll just take a sample item and I'll just give a description of saying test quantity 1 500. एक डमी इनवॉइस में ले रहा हूँ. And now, if you are, let's say you are always printing the invoice, bill save करते ही आपको पूछता है do you want to print the invoice? अगर आप WhatsApp पे शेयर कर रहे हो, WhatsApp कनेक्टेड है, तो वो पूछेगा do you want to WhatsApp the invoice? अभी हमारा भारत कनेक्टेड है, तो I'll just click on accept and you can see here, do you want to share this invoice with Param Consultancy via Bharat Connect, right? ऑटोमेटिकली वो आपको पूछ रहा है आपको इनवॉइस परम कंसल्टेंसी को भेजना है क्या. अभी आपको ये पता नहीं कि परम कंसल्टेंसी टैली यूज कर रहा है कि नहीं यूज कर रहा है, तो टैली प्राइम 7 यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जोहो यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, यू डोंट केयर, राइट? वो पूछ रहा है डू यू वांट टू शेयर इनवॉइस टू परम कंसल्टेंसी, एंड यू जस्ट क्लिक ऑन यस, एंड यू विल सी less than 5 seconds and your invoice will be shared to Param Consultancy automatically in their software. And उनके सॉफ्टवेयर में अभी एक पॉपअप आएगा कि growth partners has shared you an invoice amounting to 500 rupees, right? Now because I don't have access to Param Consultancy, I can't show you how it looks exactly, this invoice how it looks in Param Consultancy, but I'll show you a small video जहां पे receiver end में कैसे दिखता है वो आपको समझ में आ जाएगा. I'll just double click here. या सो नाउ लेट्स से परम कंसल्टेंसी नहीं है, लोकेश एंटरप्राइजेस यहाँ पे रिसीवर है, तो इनके बुक्स में वो कैसे दिखेगा आई जस्ट शो यू. तो अगर भारत कनेक्ट एनेबल्ड है, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आता है गेटवे ऑफ टैली में, विच इज कॉल्ड भारत कनेक्ट.
उसके ऊपर क्लिक करते ही अंदर जाते हैं, यहाँ पे लिखता है सप्लायर एक्टिविटीज एंड बायर एक्टिविटीज। यहाँ पे क्योंकि हमने इनवॉइस शेयर किया है, लोकेश एंटरप्राइजेस इज अ बायर, तो हम बायर के नीचे एक्टिविटीज में हम जाएंगे, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं यहाँ पे अपन देख सकते हैं न्यू इनवॉइसेस रिसीव्ड 1, राइट। तो उनके बुक्स में भी ऐसे ही दिखेगा। एंड वंस वी क्लिक ऑन दैट, यू कैन सी हियर एक इनवॉइस यहाँ पे दिख रहा है। We have to just select this invoice, and there is a beautiful feature here called create purchase voucher. Can you all see this? I don't know if this is hidden in your screen. Just confirm me. Can you all see this create purchase invoice? Okay, you can all see. Perfect. तो इस ऑप्शन पे जैसे ही अपन क्लिक करते हैं, I'll just show you. Yes. सॉरी, अभी क्लिक किया, अभी उसको क्लिक करना है। जैसे अपन वो क्लिक करते हैं, यू कैन सी वी हैव गॉन टू परचेज इनवॉइस क्रिएशन स्क्रीन, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन इन डेवलपमेंट मोड, क्योंकि एक बीटा वर्जन में हमने ट्राई किया था। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ गया है, इनवॉइस नंबर आ गया है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। Manish ji, your voice is gone. You are muted. Okay. Am I clear? Am I audible now? Yes, sir. Okay. Thank you and sorry for the yeah. सो वी वर हियर। तो आप देख सकते हो वो पूरा इनवॉइस यहाँ पे दिख रहा है, वेयर यू कैन सी पूरा आइटम आ गया है, क्वांटिटी आ गया है, रेट आ गया है, अमाउंट आ गया है, सब कुछ आ गया है, राइट। बट नाउ द क्वेरीज कैन बी लाइक, फॉर एग्जांपल मेरे में आइटम का नाम है एक्स, बट मेरे पार्टी के बुक्स में आइटम का नाम है वाई। दिस कैन बी अ कंफ्यूजन, राइट। सो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। आई डोंट नो इफ दिस इज अगेन विजिबल इन योर स्क्रीन। एक छोटा सा रेड मार्क यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स अगर आपको भी दिख रहा है बोर्नविटा के पास। ओके, दिख रहा है। तो ये रेड मार्क इंडिकेट करता है कि एग्जैक्ट इस नेम का आइटम हमारे पास नहीं है, राइट। इसमें अभी दो चीज हो सकता है, एक कि आइटम हमने कभी मंगाया नहीं है, हमको नया आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। दो, ये आइटम हमारे पास है बट इसका नाम कुछ और है, राइट। तो इस केस में आइटम हमारे पास है बट इसका नाम कुछ और है। सो विल जस्ट सी हाउ डू वी डू द मैपिंग। तो एक बार ये इनवॉइस क्रिएट हो गया, उसके बाद अपन को एंटर एंटर करते जाना है, एंड यू कैन सी वी आर डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन एंटर्स। यस, हियर as soon as you go on the red mark, वो आपको दिखाएगा कि नियरेस्ट मैच क्या है। तो जैसे कि वो आपको दिखा रहा है बोर्नविटा जार 150 ग्राम है एंड बोर्नविटा 200 ग्राम जार, ये दो आपका प्रोडक्ट्स है जो आपके बुक्स में है, एंड यू फील के ये बोर्नविटा जार 150 ग्राम में जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उसको आप क्लिक करोगे। आई जस्ट शो इट टू यू अगेन। उसको बस आप सेलेक्ट करोगे एक बार एंड इट्स डन। अभी आप देख सकते हो वो रेड मार्क चला गया, and new reference and all of that, and it's done, right। आपका इनवॉइस पूरा कंप्लीट हो गया इन लेस देन 1 मिनट, जो कि अगर नॉर्मल इनवॉइस अगर आप करते होते तो शायद 3 से 4 मिनट लेता, क्योंकि आपको डेट डालना है, इनवॉइस नंबर डालना है, क्वांटिटी डालना है, रेट डालना है, ऑल ऑफ दैट। इज दिस वंडरफुल? जस्ट राइट डब्ल्यू इन द चैट if you feel this is very wonderful and very good for all the chartered accountants as such। Okay, मनीष Anshu जी, sir says yes। आई हैव क्रिएटेड V2B ID फॉर वन क्लाइंट। अगर हम लाइव दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। चलेगा सर। आई गेस पीपल हैव गॉट द कंसेप्ट। मैंने आपको शेयर किया है B2B ID। ओके, नहीं चलेगा। बीटीपी आईडी से सिर्फ मैं वो लेजर क्रिएशन स्क्रीन का दिखाना चाहता था, बाकी एवरीथिंग आई गेस इट्स इनवॉइस वाला भी अगर आपको लाइव दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं ना। तो क्लाइंट का टैली भी अपन एक्सेस कर सकते हैं सर? हाँ, एग्जैक्टली सर। अच्छा, इट्स देयर विथ यू क्लाइंट्स टैली? या ओके, देन इट विल बी ग्रेट, देन वी विल डू इट लाइव। आप इनवॉइस क्रिएट कीजिए, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके उनको जो इनवॉइस आपका जनरेट होगा वो मैं आपको इनको शो कर दूंगा, है ना। ओके, इट दिस विल बी फन सर। आई विल जस्ट क्लोज दिस वीडियो। So I'll just go to create, then ledger, and I'll click on fetch GST details। सर आपने जीएसटी नंबर भेजा है? ओके, या इट्स हियर। सर सेम ही V2B ID भी सेम ही है। ओके, सो सेम ही ऑप्शन दिखता है, हम ऑप्शन लेजर प्रोवाइड क्रिएट करता है करेंगे। सेम ही दिखता है। सॉरी सर?
ऑप्शन प्रोवाइड किया था उसने, तो मैंने सेम ही रखा है। ओके ग्रेट। सो हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया। सर मेरा टैली का स्क्रीन दिख रहा है ना? एग्जैक्टली सर। Okay, I'll just click सही। on enter and it's Vishwakarma Traders, correct, sir? या सर। Okay, it's from Haryana. This is the pin code and all of that. I'll do Control A and यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी संडे डेटर सेलेक्टेड है तो वहाँ पे B2B आईडी दिख रहा है। बट अगर दूसरा कोई होता तो B2B आईडी नहीं दिख रहा है। तो मैं संडे डेटर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे B2B आईडी पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ एंड आई क्लिक ऑन एंटर। यस, इट्स देयर। उनका जीएसटी नंबर ही उन्होंने B2B आईडी ले लिया है, तो विच इज वेरी गुड केस। आपका नाम हो, जीएसटी नंबर हो, कुछ भी आप B2B आईडी बना सकते हो। आई जस्ट क्लिक ऑन एंटर एंड आई say control A. This is done, right? Next, now I'll create a sample invoice and I'll share it to Vishwakarma Traders. I'll go to voucher. Am I very speed or the speed is good, sir? This pace is good. इट्स ओके सर, आई थिंक। Everyone able to follow me? Okay, speed is okay. Perfect. ठीक है। अभी हम पार्टी लेंगे विश्वकर्मा ट्रेडर्स एंड B2B आईडी यस, सेल्स एंड वापस वही एक सैंपल आइटम हम लेंगे एंड लेट्स कॉल इट टेस्ट 2 एंड यहाँ पे आई टेक 1 एंड देन 1000 kgs एंड आई से सॉरी आई डू कंट्रोल ए। आई जस्ट नरेशन भी अपन लिख लेते हैं, अपन देखते हैं वहां पे नरेशन भी आता है कि नहीं आता है। टेस्ट परचेस एंड मैं यस करता हूँ। डू यू वांट टू शेयर दिस इनवॉइस विद विश्वकर्मा ट्रेडर्स वाया भारत कनेक्ट इज व्हाट इट इज आस्किंग। आई क्लिक ऑन यस। Invoice has been shared with Bharat via Bharat Connect. Okay, now I'll just stop sharing. Sir, आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, then I'll guide you. आप वैसा I'm doing. Yeah, Is my tally visible, sir? not yet. Yeah, now it's visible. Yeah. Now it's visible. Sir, is everyone think able to see sir's screen? Yes, sir. Sir, let us confirm from everyone if they are able to see your screen. Okay, they are able to see. Sir, Yeah. now just click on all Bharat Connect options. Yeah. Yeah, let's do it in the normal way. Come back, sir. Escape, Gateway of Tally. Okay. That's गेटवे it. ऑफ टैली में नीचे भारत कनेक्ट ऑप्शन है, बैंकिंग के नीचे। This या one. यस, वहां क्लिक कीजिए। Right. अभी विश्वकर्मा ट्रेडर्स इज अ बायर, तो हम बायर एक्टिविटीज में जाएंगे। नीचे जो बायर एक्टिविटीज उस पर क्लिक कीजिए, ऊपर Buyer वाला। activity. This यस one. यस। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे अभी तक वो दिख नहीं रहा है प्रॉब्ली। कैन यू क्लोज दिस टैली वंस एंड ओपन इट अगेन, सर? Yeah, sir. Sure. हाँ। जस्ट मिनट, मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। या दैट वुड हेल्प, सर। नाउ विजिबल, सर? नॉट एट। या नाउ इट्स विजिबल। यस, अभी भारत कनेक्ट में जाइए सर। भारत कनेक्ट एक्टिविटी एक्टिविटीज, या नॉट शोइंग, नॉट सर। विजिबल हियर। जनरली इट टेक्स लेस देन 5 seconds, यहाँ पे वो आ जाता है। सर ऊपर नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। या नो, दिस ये अबाउट तो बैक। बैकअप का नोटिफिकेशन है, हाँ, सर। दिस जनरली कम्स हियर। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग, बट कभी एक आध बार कभी लेट हो जाता है। हमारे बैंक्स में कभी हुआ है, कभी 5 minutes बाद आया है। बट जनरली द यूज केस वी हैव सीन इज 5 seconds, मैक्सिमम 5 seconds यहाँ पे अपडेट हो जाता है। हम आगे कर लेते हैं, सर। थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेंगे। श्योर श्योर। आपका स्क्रीन इधर ही लाइव रखिए, आप चेक करते जाइए। जब भी आता है वी विल शो द ऑडियंस, उसके बाद ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा उसको। ठीक है सर? श्योर, सर। या आप स्क्रीन क्लोज कर दीजिए। आई विल शेयर इट नाउ। या यू हैव नॉट शोन जीएसटी इन बिल। गौरव सर, जीएसटी भी मैं दिखाऊंगा तो भी सेम ही है सर। मैं एक बिकॉज आई वांटेड टू मेक इट क्विक, मैंने सिर्फ एक आइटम, डमी आइटम लिया है। जीएसटी भी अपन ले सकते हैं, इट वर्क्स एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, so now I guess all of you have seen how this beautiful feature works. इसी के अंदर one more use case I want to just show you. Let's say your client is into a FMCG traditional business जहां पे उनका लंबा चौड़ा invoice आता है and I
I have a sample invoice. I'll just show it to you. I'll open this. This invoice, if you see, sir, is this PDF visible? Vinod sir? या सर विजिबल. ओके, इस इनवॉइस में अगर आप देखोगे तो इतने सारे पेजेस हैं, राइट? एंड टोटल आइटम्स आके लेट्स से 52 आइटम्स है. सबके HSN अलग है, सबके क्वांटिटी अलग है, रेट अलग है. आइडियल सिचुएशन में अगर आपके क्लाइंट के अकाउंटेंट को ए एंट्री बराबर से अगर करना हो टैली के अंदर, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? आई वॉन्ट मैसेज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. हाउ मच टाइम डू यू थिंक दिस टेक्स? हाफ एन आवर और 20 मिनट्स और 5 मिनट्स? व्हाट डू यू थिंक? 52 आइटम्स है, सबके क्वांटिटी अलग है, रेट अलग है. अगर ये इनवॉइस आपके क्लाइंट के अकाउंटेंट को टैली में एंटर करना है तो कितना टाइम लगेगा? व्हाट डू यू फील? सौरभ सर सेज 15 to 20 मिनट्स, हाफ एन आवर. ओके, अगर 15 मिनट्स में हो रहा है तो ही इज एन एक्सपर्ट अकाउंटेंट. 30 मिनट्स, प्रमोद सर सेज 30 मिनट्स. ओके, तो अभी आप सोचिए मिनिमम 20 मिनट्स, 5 to 9 मिनट्स. ओके, अभी आप नहीं सर, सोचिए. वो कोई और काम नहीं कर रहा. इट मीन्स ना वो सिर्फ इनवॉइस ही चढ़ा रहा है और वो फोकस्ड है ना. हाँ, अदरवाइज सीएल के लिए तो या अकाउंटेंट के लिए अभी कोई सामने वो आ गया, को आ गया, वो बीच में भूल जाते हैं कौन से सीरियल नंबर पे थे. राइट राइट. एंड ना. लेट्स से उसने 15 मिनट में कर भी दिया, स्टिल आर वी कंप्लीटली श्योर कि उसने एरर्स नहीं किया है? टोटल मैच हो जाएगा, बट क्या हम श्योर है? अभी फॉर एग्जांपल किसान फ्रूट स्प्रेड 30 into 95 इज इक्वल्स टू 3 into 950. टोटल तो मैच होगा, ओके, बट वी आर नॉट श्योर कि उसका 100% एक्यूरेसी है. आर वी ऑल देयर? आर यू ऑल फॉलोइंग मी? कि 15 मिनट लेने के बाद भी हमको कोई गारंटी नहीं है, और लेट्स से ही इज वर्किंग फॉर 6 to 8 hours एवरी डे. तो ऐसा अगर उसको 15-20 इनवॉइस आ गया तो उसका तो दिन ही खत्म हो जाएगा सिर्फ परचेज एंट्री करने में, राइट? सो this is something which all of us as a chartered accountant or a business owner, we all used to face multiple errors in our books of accounts just because of this. इधर अगर आइटम उन्होंने गलत ले लिया तो स्टॉक में डिफरेंस आएगा, क्वांटिटी गलत ले गया तो स्टॉक में डिफरेंस आएगा, और अगर रेट गलत ले लिया तो उनका पर आइटम जो प्रॉफिट आएगा वो गलत आएगा, राइट? सो ऑल ऑफ दैट टुगेदर, still we are not sure after 15 minutes whether the entry is correct or not. Now imagine how much time would this take in Bharat Connect for this entry to be passed. I'll play the same video again and I'll show you. Sorry. बिकॉज ऐसा यूज केस अपन समझते हैं तो ही अपन को इसका एक्चुअल रेलेवेंस पता चलता है. मेरे टेस्ट आइटम में तो एक ही आइटम था, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में आइटम्स बहुत रहते हैं. दिस इज रजिस्ट्रेशन वीडियो. Okay, we are already at 8. We'll just we are at the crux of the presentation. Yeah, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. तो अभी आप देख सकते हो ये जो सेकेंड इनवॉइस था उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा. यहाँ पे आप देख सकते हो 1,47,031, राइट? इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा. इतने सारे आइटम है यहाँ पे, आप देख सकते हो. एंड समबडी आस्क्ड कि यहाँ पे जीएसटी आपने नहीं लिया है, तो इस इनवॉइस में जीएसटी लिया हुआ है. मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए नहीं लिया था, बट इनवॉइस जीएसटी भी हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो इतने सारे आइटम पे वहां पे उन्होंने सेलेक्ट किया और क्लिक किया क्रिएट परचेज इनवॉइस, एंड नाउ यू कैन सी दिस. सब कुछ अपने आप आ गया है, राइट? सारा आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, सब कुछ अपने आप आ गया है. अपन को एक बार बस एंटर 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 करते जाना है एंड तक, एंड वो एंट्री सेव हो जाएगा. सो आप सोच सकते हो एक 20-25 मिनट का काम 3 मिनट में हो रहा है. सो वो सेम बंदा जिसके लिए आप एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी और पेइंग, he can now do 8x work with this technology. And all your clients where you feel उनका too much accounting errors है, probably you should advise them and make sure that they're using this technology as soon as possible, right? This is about receiver end of Bharat Connect. And now going back to our deck. Yeah, so this is about purchase and how do you accept the purchase. परचेज एक्सेप्ट करने के बाद वहां पे और एक ऑप्शन आता है वेयर यू कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट. तो सामने वाले को भी पता चलता है कि ये एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया, समथिंग लाइक दिस. एंड देन वी हैव सप्लायर एक्टिविटीज एंड बायर एक्टिविटीज. दिस आई वांट टू हाईलाइट अ लिटिल. इफ यू गो टू भारत कनेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे यू कैन सी सप्लायर एक्टिविटीज. तो अगर
अभी थोड़े हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हमने इंप्लीमेंट किया है भारत कनेक्ट, वो क्या करते हैं, वो एक साथ में ही डे एंड में सबको इनवॉइसेस भारत कनेक्ट में भेजते हैं। तो वो सारे इनवॉइस को यहाँ पे जमा करते हैं पहले। लाइक यू कैन सी इनवॉइस रेडी टू सेंड। यहाँ पे वो जो भी आपने भारत कनेक्ट में नहीं भेजा है वो सब यहाँ पे दिखेगा। और वन क्लिक में इवनिंग 6 o'clock व्हेन दे आर वाइंडिंग द ऑफिस, वन क्लिक में सबको वो भेज देते हैं। दिस प्रैक्टिस ऑल्सो कैन बी फॉलोड। एंड जैसे ही आप इनवॉइस भेजते हो, आपको वो ऑप्शन वो यहाँ पे दिखेगा, पेमेंट पेंडिंग फ्रॉम वायर। राइट, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने इतना इनवॉइस भेजा हुआ है। विश्वकर्मा का इस पुराने डेमोस का है मेरा सब। और विश्वकर्मा का इनवॉइस मैंने भेजा हुआ है, बट इसका पेमेंट नहीं आया अभी तक मेरे को। 1,000 रुपए का मैंने इनवॉइस भेजा हुआ है, दैट इज सीन हियर। दिस इज अबाउट बायर एक्टिविटी, सप्लायर एक्टिविटी। नाउ बायर एक्टिविटी, देयर आर 3 ऑप्शंस हियर। वन इज एक्टिविटीज, जहां पे आप देख सकते हो कि न्यू इनवॉइस कौन सा आया है, एंड न्यू इनवॉइस आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे ही आप कोई इनवॉइस एक्सेप्ट करते हो, वो आके बैठ जाता है यहाँ पे नीचे, जहां पे इट विल टेल यू कि इनवॉइस तो अभी एक्सेप्ट कर दिया, अभी तेरे को पेमेंट कर। तो इट विल शो पेमेंट्स रेडी टू सेंड, एंड यू कैन क्लिक ऑन दैट, मेक द पेमेंट थ्रू। क्योंकि हमारा लाइव कनेक्टेड नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू शो इट, बट आप लाइव टैली के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका एसबीआई है, कोटक है और एक्सिस बैंक है, तो इस तीनों बैंक से आप लाइव पेमेंट कर सकते हो। एंड वो पेमेंट का कंफर्मेशन ऑल्सो यू कैन सेंड बैक टू योर डिस्ट्रीब्यूटर। नीचे सर्च एंड अपडेट बिजनेस। नाउ किसी का क्वेरी ये हो सकता है कि अगर मेरे पास लेट्स से बहुत सारे डेटर्स है और क्रेडिटर्स है, एंड आई डोंट नो कौन भारत कनेक्ट यूज कर रहा है, दिस इज अ वंडरफुल ऑप्शन। यू कैन सी हियर, आई जस्ट गो टू बेसिस ऑफ वैल्यूज एंड आई से विद एंड विदाउट B2B ID। आई क्लिक ऑन एस्केप। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ पार्टनर्स का B2B ID है, परम कंसल्टेंसी का है, सॉफ्टेक सॉल्यूशंस का नहीं है, विश्वकर्मा ट्रेडर्स का है। राइट, सो अगर ग्रुप वाइज आपको देखना है डेटर्स या क्रेडिटर्स का, तो यू कैन डू दैट एज वेल। डेटर्स में किसका किसका है, क्रेडिटर्स में किसका किसका है, ऑल ऑफ दैट यू कैन सी। राइट, सो दिस इज अबाउट सर्च एंड अपडेट बिजनेसेस। नेक्स्ट वन इज अ मास्टर स्ट्रोक प्लान्ड बाय टैली, मास्टर मैपिंग। ओके, यहाँ पे क्या होता है, लाइक आई टोल्ड यू, यू कैन डू द मैपिंग। कभी नाम चेंज, फॉर एग्जांपल इफ आई एम शेयरिंग एन इनवॉइस, लेट्स से हमारा एक्चुअल नाम ऑफिस का है ग्रोथ पार्टनर्स, बट आपके बुक्स में सेव्ड है मेसर्स ग्रोथ पार्टनर्स। तो हर बार अगर आपको मैपिंग करना है, तो भारत खंड का कुछ मतलब ही नहीं हुआ, आपका हर बार इतना टाइम जाएगा। सो इसमें एक ऐसा इंजन है जहां पे आप एक बार सेटिंग कर सकते हो कि हर बार अगर ये नाम आए तो ये नाम पिक हो जाए अपने आप। राइट, तो दिस वर्क्स फॉर आइटम नेम ऑल्सो, पार्टी नेम ऑल्सो, ऑल ऑफ दैट। राइट, आई जस्ट शो यू। सो पार्टी लेजर में अगर परम कंसल्टेंट्स आया हुआ है, तो उसको परम कंसल्टेंसी में माना जाना चाहिए। समथिंग लाइक दिस यू कैन डू। सेम वे फॉर अकाउंटिंग लेजर्स, एडिशनल लेजर, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में लेट्स से एक्सट्रैक्टेड वैल्यू, लेट्स से एक्सट्रैक्टेड वैल्यू अगर टैली प्राइम लिखा हुआ है स्टॉक में, तो उसको सैंपल आइटम माना जाना चाहिए। राइट, एंड कोई केसेस में ऐसे होता है कि हर पार्टी का अपन को अलग अलग सेटिंग रहता है। तो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द पार्टी कि अगर ग्रोथ पार्टनर से हम टैली ले और वो टैली प्राइम लिखा हुआ है, तो हमारे बुक्स में वो सैंपल आइटम नाम से आना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग अ रॉ एग्जांपल, बट ऐसे आप सारे पार्टी का एक बार आपको सेटिंग करना है, उसके बाद अपने आप वो पिक कर लेगा। ऐसे आप यूनिट भी ले सकते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, ऑल ऑफ। राइट, सो दिस इज अबाउट मास्टर मैपिंग। इज मास्टर मैपिंग यूजफुल? व्हाट डू यू फील? इज मास्टर मैपिंग यूजफुल? क्योंकि उसके बिना तो ये प्रोडक्ट अधूरा है। हर बार अगर आपको मैपिंग करना है, तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता इस प्रोडक्ट का। ओके, ग्रेट। So all of us feel it's useful. I'll now go back to sir, आपके यहाँ पे चेक कीजिए, have you got that invoice? विनोद सर? सर आई एम चेकिंग कंटिन्यूसली। आई थिंक गवर्नमेंट वेबसाइट है भारत कनेक्ट, तो शायद कहीं सेशन डाउन है इनका, आई थिंक। अच्छा, maybe because generally in our use case it has always happened on दिस इज गवर्नमेंट ओन्ड ऐप ना सर? sorry sir, भारत कनेक्ट गवर्नमेंट ओन्ड है ना, तो आई थिंक वो गवर्नमेंट ओन्ड, बट वो 24/7 चालू है सर। वो उसका जैसे कि चालू है गूगल सर, पे बट है। कभी कभी वेबसाइट या इनका जो सर्वर है वो लैग करता ही है गवर्नमेंट का। correct. Maybe that is the case. That is the case. So next eligibility criteria, ये किसके किसके लिए? So what I've done is, अभी जो भी हमको मेरे को लास्ट सेशंस में क्वेश्चंस आए थे, उसको एक मैंने FAQ फॉर्मेट में यहाँ पे डाला है, ताकि ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। एंड इसके बाद भी अगर इफ यू हैव मोर डाउट्स, देन वी कैन अगेन ओपन अप फॉर Q&A इन 5 minutes। आई एम जस्ट रैपिंग इट अप। Who is it for? All businesses registered under Bharat Connect via with the valid B2B ID. Number one, अगर सामने वाला बिजनेस GST रजिस्टर्ड नहीं है, तो भारत कनेक्ट उनके लिए नहीं है।
और अगर भारत जीएसटी रजिस्टर्ड है बट उसने B2B आईडी नहीं है उसका, तो भी वो भारत कनेक्ट यूज नहीं कर पाएगा। नंबर टू, इज इट चार्जेबल और फ्री? इट्स करेंटली फ्री, फ्री इन जोहो, फ्री इन टैली, फ्री इन ईजबस, क्योंकि ये टेस्टिंग फेज चल रहा है। बट वी डोंट नो आगे क्या होगा, थोड़ा उसका फीस भी हो सकता है या फ्री भी उसको गवर्नमेंट छोड़ सकता है, जैसे यूपीआई फिलहाल फ्री है। Retaining operational control, editability. So, like I told you, ledger names and stock items can be mapped or edited before creating the purchase voucher. ये जरूरी नहीं है कि आपको परचेज वाउचर कैसा आपको सामने वाला ने भेजा है वैसे के वैसा ही आप उसको एंटर कर लें। नेक्स्ट, मिसमैच हैंडलिंग। अगर आप वेंडर नेम वाइज भी अगर आप डिफाइन करो तो वो भी हैंडल हो जाएगा। आपको अगर परचेज ऑर्डर अगर आपने भेजा है भारत कनेक्ट से, तो आप उसका परचेज इनवॉइस भी उसको मैप कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी, लाइक आई टोल्ड यू, दिस डज नॉट केयर विच सॉफ्टवेयर योर कस्टमर यूजेस। अगर वो टैली यूज कर रहे हैं, ईजबस यूज कर रहे हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, दिस विल वर्क सीमलेसली अक्रॉस ऑल द सॉफ्टवेयर्स। सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, टैली डज नॉट सी योर डेटा। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि डेटा टैली वाला ले रहे हैं क्या। सो ये टैली डेटा नहीं ले रहा है, टैली इज जस्ट अ यूजर फॉर भारत कनेक्ट। ओनली एनपीसीआई हैज एक्सेस टू डेटा शेयर्ड बिटवीन जीएसटीआईएन्स। नो गवर्नमेंट रिपोर्टिंग। एक और क्वेश्चन जो आता है कि इसका रिफ्लेक्शन और कहाँ होगा, तो फिलहाल इसका जीएसटी, एआईएस, टीआईएस, ई इनवॉइस में कहीं पे भी रिफ्लेक्शन नहीं है, बट वी डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस। सो टैली प्राइम 7.0 में A3 बैंक का अगर आप कनेक्टेड हो तो लाइव आप पेमेंट्स भी कर सकते हो। सो इट्स एरर फ्री डेटा एक्सचेंज, एनपीसीआई बैक्ड सिक्योरिटी, एंड इट्स सीमलेस रिकंसिलिएशन व्हाट वी हैव, एंड इट्स रेडी फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। So this is about today's session on Bharat Connect. I hope we were together for 1 hour, 7:10 to 8:10. So we completed it this on time. I hope this was fruitful for all of you. And after this also, you have any queries, I'm open for questions. You can just post it here. Vinod sir, if you have missed any questions in the past, अगर ऊपर कोई questions गए तो you can tell me. आई थिंक नो सर, वो थोड़ा सा वही है कि जो लाइव नहीं देख पाए, विश्वकर्मा ट्रेडर पे आया नहीं बिल, तो दैट्स एप्लीकेशन की Sir, वजह can से। we do one thing? आप एक टेस्ट इनवॉइस बना के ग्रोथ पार्टनर्स को भेज सकते हो? सो यू हैव टू शेयर B2B आईडी सर। या आई शेयर। नहीं, आपको मेरा जीएसटी नंबर चाहिए रहेगा सर लेजर बनाने के लिए। B2B आईडी तो अपने आप आ जाएगा। एग्जैक्टली। I have just shared you my GST number. Can you explain master mapping again? Sure sir, I'll do it. सर आप वो एक इनवॉइस बना के मेरे को शेयर कीजिए, तब तक मैं मास्टर मैपिंग वापस दिखाता हूँ। या देन आई एम शेयरिंग स्क्रीन डायरेक्टली, शो हो जाए, दोबारा शो हो जाएगा सर ऑडियंस को। अच्छा चलेगा, ठीक है, तो मास्टर मैपिंग उसके बाद कर लेंगे। आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। या सर, यू कैन शेयर इट नाउ। इज इट विजिबल सर? यस, विजिबल है। दैट्स इट, क्रिएटेड सर। या ये आप बता ही चुके हैं। यस, नीचे B2B आईडी वहां पे सेलेक्ट कर लीजिए सर, सर्च कर लीजिए। एक मिनट, ओके नीचे रह गया ना वो, एक मिनट, जस्ट मिनट। यस। नाउ आई हैव टू। मिनट सर, समथिंग लाइक दैट। दैट्स इट। सर आपका स्क्रीन शायद थोड़ा लैग। हाँ, या अभी एक्सेप्ट। बस यस मुझे सर। एक्सेप्ट ही करना है। Accept and EV bill generation, no. Do you want to share this invoice with growth partner? Yes. Duplicate supplier invoice number. Oh, डुप्लीकेट सप्लायर इनवॉइस नंबर दिखाया सर इसमें। तो आपका इनवॉइस नंबर डुप्लीकेट हो गया शायद। सर होना डेट नहीं 21 फेब 1 कर दीजिए सर, आज का डेट कर दीजिए। चाहिए, जस्ट ए मिनट।
Santosh sir, Pramod sir, we'll take up your questions once we finish this. Everyone can go on putting your questions in the chat box. एक साथ सब कुछ ले लेंगे अपन, एक लाइव देख लेते हैं तब तक. Invoice has been shared by Bharat Connect, sir. Perfect, sir. I'll just see in my tally now. Now I'm stopping sharing, sir. Yeah. Now you can share. Okay, I'll share the screen now. My screen is visible, sir? Just a minute, sir. Yeah, now visible, Okay, sir. I'll reopen tally. Okay, I'll go to Bharat Connect, buyer activities. It's still not appearing here. Might take some time. यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, नहीं तो वो इधर ही ऊपर दिखता है. I think सर सर्वर ही डाउन है उनका इस टाइम. Maybe, yeah. Anyways, we'll take up the questions and तब तक वापस एक बार अपन चेक कर लेंगे कि आया है कि नहीं. I'll just open the chat box. या सर काफ़ी क्वेरीज हैं. Okay. Can GST department etc. fetch the data from Bharat Connect? Santosh sir, I'm 100% sure GST will fetch the data, but I think like e-way bill and e-invoicing, okay, this is also one of the technologies. So any which ways the data is going to department, or if you're talking about the client's perspective, पक्का कच्चा, तो इसमें सिर्फ पक्के का काम होगा. So everything is going via government, so there's no point of even thinking कि GST डिपार्टमेंट को ये डेटा जाएगा कि नहीं जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से ही ये जा रहा है. सो आई थिंक यस. कैन यू एक्सप्लेन मास्टर मैपिंग अगेन? श्योर सर. मास्टर मैपिंग आई जस्ट शो अगेन. आई गो टू टैली. सर टैली इज विजिबल सर? या सर. ओके, सो वी गो टू भारत कनेक्ट एंड यहाँ पे मास्टर मैपिंग बायर एक्टिविटीज में मास्टर मैपिंग है. एक मास्टर मैपिंग बायर एक्टिविटीज में ही चाहिए क्योंकि हम मैपिंग परचेज इनवॉइस पे करते हैं, सेल्स इनवॉइस को हम नहीं करते हैं. तो मास्टर मैपिंग में जाऊंगा और लेट्स से पार्टी लेजर, जैसे कि मैंने बोला सर का लेट्स से विनोद एंड को नाम है, बट मेरे टैली में लेट्स से विनोद एंड कंपनी विश्वकर्मा ट्रेडर्स है, राइट? तो आई वांट माय टैली टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपको इनवॉइस आए विनोद एंड को से, तो मेरे टैली में विश्वकर्मा ट्रेडर्स नाम से जो लेजर है उसको आप पिक कर लेना. दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट आई एम गिविंग टू माय टैली विद दिस सेटिंग एंड आई विल से कंट्रोल ए लाइक दिस अकाउंटिंग लेजर. अगर मेरे को लेट्स से अकाउंटिंग लेजर में अगर आपने मल्टीपल टाइप बनाया है, तो सेल्स जीएसटी, सेल्स एग्जेम्प्ट या फिर सेल्स इंटरस्टेट, सेल्स लोकल, तो आप वो उसका सेटिंग कर सकते हो. मेन थिंग इज स्टॉक आइटम. जैसे कि लेट्स से आप बोलते हो आपको विश्वकर्मा ट्रेडर्स से लेट्स से सर व्हाट इज दिस क्लाइंट इनटू? क्या सर? व्हाट इज दिस क्लाइंट इनटू सर विश्वकर्मा ट्रेडर्स? ट्रेडर सर इन इलेक्ट्रिक आइटम. सॉरी सर? इलेक्ट्रिक आइटम. इलेक्ट्रिकल. लेट्स से दे आर गिविंग 5 watt बल्ब, ओके. और मेरे बुक में मेरे को 5 watt बल्ब नहीं डालना है. मेरे बुक में सिर्फ लेट्स से एक आइटम है बल्ब, ठीक है. मेरे को उसको बल्ब के अंदर लेना है. हर बार मेरे को वैट के हिसाब से बल्ब नहीं बनाना है. तो मैं इधर लिख सकता हूं कि जब भी विश्वकर्मा ट्रेडर्स से हमको बिल आएगा, उस बिल में अगर 5 watt बल्ब नाम का आइटम है, तो अपने बुक्स में जो बल्ब आइटम है उसको पिक करना है ऑटोमेटिकली. ये सेटिंग आपने एक बार कर दिया यहाँ पे आके, या फिर आप जब इनवॉइस सेव कर रहे हो तभी आपने एक बार अपने आप मैपिंग कर दिया वहां पे, तो यहाँ पे भी वो सेव हो जाएगा.
तो नेक्स्ट टाइम से आपको सोचना भी नहीं है, ऑटोमेटिकली वो टैली समझ जाएगा और बैकएंड से ये सारे रूल्स और लॉजिक्स वो पुल करेगा और आपका इनवॉइस में जो भी रेड मार्क आता है वो सारा रेड मार्क निकल जाएगा. This is about master mapping. I hope I have answered you, sir. Bhupalam Venkatesh, sir. If you still have a query, you can again post it. If the seller identifies some items to be Pramod, sir, I'm answering your query. If the seller identifies some items to be corrected after sharing the invoice to Bharat Connect, how this is going to affect? Okay. So, sir, this is like you are doing the data entry. Think of this as a data entry, and then the supplier has to change something. There are multiple options. One is you cancel the invoice or you delete the invoice, and he creates the invoice again, corrects the invoice, and shares it again. वो वापस शेयर करने का उनको ऑप्शन है, राइट? वापस शेयर करेंगे तभी आप वो चेक कर लीजिए, वो एक्सेप्ट कर लीजिए, एंड देन इट्स डन. और भारत कनेक्ट में एक्सेप्ट और रिजेक्ट का भी ऑप्शन है. तो अगर आपको एक्सेप्ट करने के पहले ही पता चल गया है कि ये गलत है, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो. सपोज द इनवर्ट गुड्स अपॉन रिसिप्ट, हाउ मच ऑफ टाइम इज देयर टू एक्सेप्ट द इनवॉइस? सर, इसमें कुछ भी टाइम लिमिट नहीं है, ये आपके अंदर आके पड़ा रहेगा. ओके, आपको जब भी एक्सेप्ट करना है आप कीजिए. देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टिंग. इफ द पेमेंट टू बी if the purchase invoice to be approved by some department before recording in books, how to address this issue? If the purchase invoice to be approved by some department before recording in books, how to address this issue? Okay, so department as in I am thinking you are talking about users, right? कि अगर यूजर है, यूजर वाइज आपने रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है तो कैसे होगा? तो सर यहाँ पे जो भारत कनेक्ट है, आप अगर यूजर एक्सेस में जाओगे, वहां पे आपको दिखेगा कि इस यूजर को भारत कनेक्ट का एक्सेस है, इस यूजर को भारत कनेक्ट का एक्सेस नहीं है. तो सिर्फ जो एडमिन लेवल पे है या जिसको आप एक्सेस देना चाहते हो भारत कनेक्ट का, उनको आप एक्सेस दे सकते हो और वही अप्रूव कर सकते हैं. If the payment to be approved by, let's say, two-factor authentication, whether payment will option will work or not. सर, ये 2FA का क्वेश्चन हमको पहले भी आया है. फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है भारत कनेक्ट में, but this has already been shared to the NPCI team, and they are figuring out somehow how they can work on it. How to confirm that the payment has been received by the vendor? सर, वेंडर को हम कंफर्मेशन भेज सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर से, उसको उसके बैंक में चेक करके वो वापस एक्सेप्ट कर सकता है. एक बार उसने एक्सेप्ट कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि उसके बैंक में आ गया है. I guess I have answered all the questions. If somebody still has any questions, I would love to take up. Okay, I've answered. Thanks. तीनों आ गए तो I feel. Anybody else has any queries? No, sir. If anyone have queries, then can raise hand or no, sir. I think we can wrap up now the session. Okay, I'm just posting my feedback link so that I get to know how did people like the session. Hello all, I've just put a review link. आप यहाँ पे click करके you can just write down was it informative? Do you need any improvements or something like that? Gopal sir says Kotak not connecting. Sir, this should connect. Kotak तो already live है. तो अगर कुछ भी issues है, first time अगर थोड़े clients को issues हो रहा है, तो backend से उसका resolution हो रहा है. So you can drop a mail to support@telesolutions.com or to our office ID also, and we will try to get you in touch with support team. I'm just writing support team का email ID. You can take it forward. अगर कोई पार्टिसिपेंट अनम्यूट करके अगर पूछना चाहता है तो भी Yeah. क्वेरी ले सकता है. Yeah, if anybody wants to Now unmute. you are able for unmute yourself. Yes. Hi, Manish. My question with respect to the inward of goods by some department. For example, purchase department release a PO. The goods will be sent by the vendor. The goods will be accepted by the stock inward department. Okay. So only upon the quality inspection, the invoice has to be approved by the finance team. Correct. So in this situation, how this future is going to work? Okay, got it, sir. आपको QC का पूछ रहे हो ना? Yes. Yeah. I have got this query Okay, before. I will explain the scenario in detail. Like, I will receive a invoice from Gujarat. Okay. I But got your my- query, sir. I have received this query before. Okay. So Bharat Connect solves for quantities, not for quality. No, my question is, Yes. suppose if it is to be, I mean,
stock to be inverted and quality to be inspected. Then only the invoice will be accepted. Correct? So whether is there any future which enables the stock department saying yes, this invoice this invoice the goods mentioned in this invoice has passed the quality inspections and it is ready to accept. So like is there any other method that like first it will be approved by the stock department, then it will go and sit in the finance department? Is there any such method is available to map in the ERPs? No, sir. Currently, by default, it's not there. This is actually QC only what you're asking. I've also got queries like there are two people in the purchase department. One person checks the quality. Okay, like for example, it's written as Titan clock, whether it is actually Titan clock or not. Okay, this is his job. And there is another person who will check the quantity. That Correct. they have mentioned 10 clocks. Are there 10 clocks or not? Right. So Yes. this Bharat Connect feature is only with respect to numbers. Okay, only quantity. The quality doesn't have any relevance here, right? But this was asked to me when I was doing it live through Tally's official YouTube channel also, and it seems that this is a requirement for a lot of private limited companies who has this QC inside. So Tally is thinking of developing a add-on or something like this, by which this can be enabled. But currently, by default, this is not there. Noted. Thank you. Yeah, thank you, sir. Anyone Anybody else? I've just dropped my LinkedIn as well in case you have any queries we would love to clarify them there. और एक टैली टिप्स करके एक हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, वहां पे मैंने लिंक डाला है. Every day we keep posting about a few tips and tricks over Tally, and obviously one review link which I would love to hear from all of you if this has really helped you, and if this has made a difference in how you take forward accounting for your clients. Can we wrap up now, sir? Sorry, sir. Can we conclude this now? Yeah, sir. I guess we don't have any more queries. Okay. Thank you everyone for joining us today for this insightful session on Bharat Connect in Teleprime. I would like to extend a heartfelt thanks to our esteemed speaker, CA Manish ji. Manish ji, your expertise as a tele expert and evangelist and your insight as an AI and tech consultant have truly shown us how we can bridge the gap between traditional accounting and modern technology. We are grateful for the time you took to explain how we can digitally send invoices from a supplier's tally to a customer's tally free of cost, a feature that will undoubtedly help us future-proof for our professional practices. Thank you for being such an engaged audience. We hope this session empower you to implement these tech advancement in your daily workflow. I am C. Vinod Jangda signing off for the today. Have a wonderful evening. Thank you all. Thank you, everyone. See you. Thank you so much, sir, for having me over.